Hello everyone. Today we are going to start our second lesson, which is Let's Learn Pranayam. Before we will start this lesson, I will give you some instructions related to your examinations. Dear students, the questions and answers which are given in the last of the chapter, which will not be asked in your examinations. So dear students, you should do practice of the passages which are given in the chapter. Why? Because the passage will be asked in your question paper and question and answer put from the passages. So let's come to know about the pranayam. What is a pranayam? Dear students, pran means energy, ayam means control. The literary means of pranayam is to control on your energy. Dear students, pranayam is useful to our daily life, so you should do practice of the pranayam. So dear students, I strongly recommend it to you to start doing practice of the pranayam. Why? Because it controls our breath rate and increase our average life. Okay, so let's come to know through the second chapter about the pranayam and different positions, different posture of the pranayam, means how to do the pranayam. Okay, let's come to know through this lesson. Shivam and Nitin were students of the class 5th. One day they got up early. It was a pleasant morning. They went to a park for a morning walk. They saw many people in the park. Some of them were running on the track around the park. Children were playing in the middle of the park. Some people were sitting and making different poses. Shivam wondered what they were doing. Out of curiosity, both the friends went near them. शिवम और नितिन दो फ्रेंड हैं. दोनों सुबह जल्दी मॉर्निंग वॉक के लिए पार्क में जाते हैं. वहाँ उन्हें कुछ लोग डिफरेंट पोजीशन करते हुए मिलते हैं. तो वो बहुत क्यूरियस होते हैं जानने के लिए कि ये क्या हो रहा है, और वो उन लोगों के पास चले जाते हैं. देयर वॉज अ योगा टीचर हु वॉज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू अदर्स. वहाँ एक योगा टीचर होता है जो दूसरे लोगों को इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है. He said, "My dear friends, let's learn pranayam in today's yoga class." योगा टीचर बोलता है कि आज की योगा क्लास में हम लोग प्राणायाम सीखेंगे. What is pranayam? Somebody asked. उनमें से कोई पूछता है कि प्राणायाम होता क्या है. So he explained about the pranayam. The yoga teacher tell them about the pranayam. Pranayam is control and extension of the breath. प्राणायाम हमारी जो ब्रीथ है इसको कंट्रोल करता है और इसको एक्सटेंशन करता है. बाय प्रैक्टिसिंग इट, हम प्रैक्टिसाइजिंग करके इसको कंट्रोल कर सकते हैं. वी कैन रिड्यूस आवर ब्रीथिंग रेट, हम हमारी ब्रीथ रेट को रिड्यूस कर सकते हैं. रिड्यूस्ड ब्रीथिंग रेट हैज़ अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स. रिड्यूस्ड जो ब्रीथ रेट होते हैं इसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, फायदे होते हैं. इट स्लोस डाउन हार्ट रेट, रिड्यूस्ड ब्लड प्रेशर एंड रिलैक्स बॉडी एंड माइंड. रिड्यूस्ड ब्रीथिंग है, इससे हमारा हार्ट रेट है वो स्लो होता है, और इससे ब्लड प्रेशर है वो कंट्रोल होता है, रिड्यूस होता है, और हमारी बॉडी और माइंड इससे रिलैक्स होते हैं. प्राणायाम इंक्रीज आवर लाइफ एक्सपेक्टेंसी. प्राणायाम से हमारे जीवन जीने की जो एक्सपेक्टेंसी है, प्रत्याशा, जीवन प्रत्याशा है, लाइफ एवरेज लाइफ है, वो हमारी इंक्रीज होती है, बढ़ जाती है. Shivam and Nitin got interested and joined the group after seeking permission from the yoga teacher. योगा टीचर से परमिशन लेके वो प्राणायाम क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं. द टीचर स्टार्ट लिसनिंग द स्टेप्स ऑफ प्राणायाम. योगा टीचर है, प्राणायाम के स्टेप्स करना स्टार्ट करता है. द फर्स्ट स्टेप इज सिट कामली ऑन मैट एंड क्लोज योर आइज. आपको मैट के ऊपर शांति से बैठना है और अपनी आइज को क्लोज करना है. दिस इज द फर्स्ट स्टेप. सेकेंड स्टेप इज पुट लेफ्ट एंकल ऑन द राइट थाई. आपके राइट थाई के ऊपर आपको अपना लेफ्ट एंकल रखना है. एंड इन द नेक्स्ट स्टेप नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ्ट थाई. अब आपको उसी तरह से लेफ्ट थाई के ऊपर आपका राइट एंकल रखना है. दिस पोस्चर इज कॉल्ड पद्मासन. इस पोजिशन को बोलते हैं पद्मासन पोजिशन. डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी the picture in the second chapter of the Padmasana, means how to do
the Padmasana. In the beginning, you may find it slightly difficult to sit in this pose. शुरुआत में आपको इस पोजीशन में बैठने में डिफिकल्टी होगी. डोंट वरी अबाउट इट, इसके बारे में आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है. विथ अ लिटिल प्रैक्टिस यू विल लर्न इट. थोड़े से अभ्यास के बाद आप इसको सीख सकते हैं. इन द बिगिनिंग द फोर्थ स्टेप, प्रेस योर राइट नोस्ट्रल with your right hand thumb. Dear students, with the help of your right hand thumb, you should press your right nostril. This is your right nostril. So put your right hand thumb on the right nostril and breathe in slowly from the left nostril. Now you should breathe from your left nostril. Do this till your lungs are full. ये आपको कब तक करना है? जब तक आपके लंग्स फुल नहीं हो जाते हो. दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड पूरक. इस प्रोसेस को, प्राणायाम के इस प्रोसेस को बोलते हैं पूरक. फिफ्थ स्टेप, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 or 10 seconds और ओनली एज लॉन्ग एज यू कंफर्टेबली कैन. आप इसको, जो आपने ब्रीथ को होल्ड किया है, अपनी लंग्स के अंदर रोका है, उसको आपको 5 or 10 सेकेंड तक इसको होल्ड करके रखना है, रोक के रखना है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कुंभक. थर्ड प्रोसेस को बोलेंगे कुंभक. फर्स्ट प्रोसेस इज पद्मासन, सेकेंड इज पूरक एंड थर्ड प्रोसेस इज कुंभक. इन द स्टेप 6, नाउ रिलीज द थंब. जो थंब आपने राइट नोस्ट्रिल के ऊपर रख रखा है, उसको आपको रिलीज करना है. एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रियल विथ योर रिंग फिंगर. आपका जो ये रिंग फिंगर है, इससे लेफ्ट नोस्ट्रियल को प्रेस करना है, दबाना. Press your left nostril of your ring finger and release the breath from your right nostril. Okay, this process is called Trechak. Next step, 7th step, now breathe in from your right nostril. जो भी breath आपने hold किया है, उसको आपको release करना है. Step 8, hold your breath again. आपको फिर से अपनी ब्रीथ को, सांसों को फिर से आपको रोकना है. स्टेप 9, नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रियल विथ थंब एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम योर लेफ्ट नोस्ट्रियल. अब आपको अपने राइट नोस्ट्रियल को थंब से प्रेस करना है और लेफ्ट नोस्ट्रियल से इसको बाहर निकालना है, रिलीज करना है आपके जो भी आपने ब्रीथ को कंट्रोल किया है. यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इट अप 15 or 20. डियर स्टूडेंट्स, ये प्रोसेस आपको 5 टाइम करना है और बाद में धीरे धीरे आपको 15 और 20 राउंड्स तक इसको इंक्रीज करना, बढ़ाना है. शिवम एंड नितिन वर हैप्पी टू हैव लर्न प्राणायाम. शिवम और नितिन प्राणायाम को सीखकर बहुत खुश थे. दे थैंक द योगा टीचर. उन्होंने योगा टीचर को थैंक्स बोला एंड डिसाइडेड टू कम टू द पार्क एंड अटेंड द योगा क्लास डेली. सो दे डिसाइडेड टू अटेंड द योगा क्लासेस रेगुलरली. सो डियर स्टूडेंट्स, you should do start the practicing of the yoga. Why? Because it is useful to your daily life. It prevents many diseases and you should increase your life expectancy also. So be happy. In the next video I will explain another chapter. Till then, read this chapter again and again. Try to understand about the pranayam and what are the steps and what are the process of the pranayam. I hope you will be enjoy